Hello students, this is the third video lecture of chapter 10 Light, Reflection and Refraction, class 10 Science. In this video lecture, we are going to understand, or let us say understand side by side, remembering the ray diagrams. Okay, so ray diagrams पहले कॉनकेव फिर कॉन्वेक्स मिरर का देखेंगे. नाउ इफ़ वी टॉक अबाउट कॉनकेव मिरर, ठीक है, तो वो बनाती जाऊंगी, साथ में टेबल भी बनाएंगे. तुम्हें सिर्फ समझना है कि कौन सी रे कहाँ से पास कराना है, इमेज कहाँ बन रहा है जब मैं ऑब्जेक्ट को कोई पर्टिकुलर पोजीशन पे रखती हूँ. सो फॉर दिस द वीडियो लेक्चर वी रेस्ट्रिक्ट अप टू रिमेंबरिंग द position of object with respect to position of image, size of image and nature of image. First of all, you remember and how the image is formed, you understand this. In the next video lecture, I would be, making you understand how to draw that ray diagram with scale and pencil perfectly. Okay, today I would be showing you, or else in this video lecture I would be showing you the ray diagram, that how or which ray has to be passed from which point, which position. Okay, so let us start. Now if I talk about, as I said, first we are going to discuss about images formed by concave mirror. Images formed by concave mirror. Okay, so you can draw along with me. You can slow the video, pause the video and try to draw the table along with me. So first of all, serial number, then you would be writing position of the object, next position of the image, then size of the image, and next nature of the image. Okay, so there would be 6 different positions where we would be placing the object. First of all, recall how can you make concave mirror, है ना. तो मैंने कहा था concave यानी जो reflecting surface है would be bent inwards. तो this is my principal axis. Remember, principal axis. Okay, so this is my principal axis, let's suppose, and I am drawing a concave mirror. Okay, until and unless I do not show this coating, I won't be able to come to know whether it is concave or convex. So this is now concave. Now if you find the focus, where the focus would be, obviously if I complete this sphere, the center would be on this side, है ना. So my focus and center of curvature would be at this side. Okay, now what was this point? Center of the reflecting surface on the mirror. Center of reflecting surface on the mirror is nothing but pole, which is represented by capital P. Next, अब मान लो पोल से तुमने 2 सेंटीमीटर लिया. आर्बिटरीली यू हैव टू टेक, लेट सपोज वी टेक 2 सेंटीमीटर. सो आर्बिटरीली आई टेक 2 सेंटीमीटर. तो ये मेरा फोकस हो गया. नाउ वी नो द डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड फोकस इज फोकल लेंथ. The distance between pole and
principal focus is focal length, and this focal length is represented by small f, and it is nothing but radius of curvature divided by 2. So what was radius of curvature? Radius of curvature was distance between pole and center of curvature. So let's suppose अगर मैंने ये 2 सेंटीमीटर लिया है, so again from focus I have to take 2 centimeter to draw the center of curvature. That means the distance between center of curvature and focus and the distance between focus and pole is same. Are you getting? Now if we talk about the position of image, so let's suppose we take the first case wherein position of object is at infinity, तो कि ऑब्जेक्ट बहुत दूर है, तो बहुत दूर है, सो वी वुड बी प्लेसिंग द ऑब्जेक्ट लाइक दिस, ये ऑब्जेक्ट का या एरो का, व्हाई डू वी रिप्रेजेंट द ऑब्जेक्ट इन द फॉर्म ऑफ एरो? दिस वुड बी इट्स हेड, दिस वुड बी इट्स टेल, रिप्रेजेंटिंग ए बी. ठीक है ना, क्योंकि वो इंफिनिटी पे है तो हम डॉटेड लाइन से शो करके फिर रेज दिखाएंगे. ये ऑब्जेक्ट में से रे आई, यहाँ से डॉटेड लाइन शो करके फिर रे दिखाएंगे. क्यों डॉटेड लाइन दिखा रहे? दैट implies that the object is placed at infinite, बहुत दूर है. ठीक है, अब क्या होगा? जब ये रिफ्लेक्ट होगी तो ये रे कहाँ से पास होगी? फोकस से पास होगी. ये रे कहाँ से पास होगी? फोकस से पास होगी, है ना. तो ये रे फोकस से पास होगी. एरो नीड टू बी मेंशन विदाउट फेल, है ना. रेस का जो डायरेक्शन है, ठीक है, दैट नीड टू बी मेंशन. सो ये तुम्हारा फोकस से ये पास हुआ, मतलब जहाँ पे ये रेस इंटरसेक्ट कर रही है दैट पॉइंट इज एट फोकस, एट एफ, है ना, एट एफ. साइज ऑफ द इमेज, इमेज कैसा है? हाईली डिमिनिश्ड. कैसा है? हाईली डिमिनिश्ड. डिमिनिश मतलब छोटा, तो हाईली डिमिनिश मतलब बहुत छोटा, है ना. हाईली डिमिनिश्ड. याद रखना, जब भी इमेज फोकस पे बनता है वो पॉइंट साइज्ड होता है. यहाँ पे इमेज कैसा है? पॉइंट साइज्ड. ठीक है, यहाँ पे इमेज कैसा है? पॉइंट साइज्ड. Now nature of image में we have two aspects. एक होता है रियल और एक होता है वर्चुअल. जब भी इमेज रियल होगी तो मैं कहूंगी कि इट इज इन्वर्टेड. जब भी इमेज वर्चुअल होगी तो मैं कहूंगी इट इज इरेक्ट. ठीक है, अब रियल कैसे, वर्चुअल कैसे पता चलेगा? तो एक तो मैंने बताया था कि द इमेज विच इज नॉट फॉर्म्ड एट द स्क्रीन इज नोन एज वर्चुअल इमेज, एंड द इमेज विच इज फॉर्म्ड एट स्क्रीन इज कॉल्ड रियल इमेज. अब स्क्रीन से तो हम चेक नहीं करेंगे. सो इस केस में हम देखेंगे कि अगर रिफ्लेक्टिंग सरफेस की साइड बन रही है, ऑन द सेम साइड ऑफ द मिरर अगर इमेज बन रही है, देन इट वुड बी रियल. पर अगर इमेज जो है वो मिरर के पीछे बन रही है, बिहाइंड द मिरर, देन द इमेज वुड बी वर्चुअल. सो व्हेन आई से द इमेज formed behind the mirror, मिरर के पीछे बनता है इमेज, देन इट इज वर्चुअल. ठीक है, अगर इमेज इज फॉर्म्ड in front of the mirror, then it is real. Okay, now जब भी वर्चुअल इमेज बनेगा, मतलब I would be including
वर्चुअल इमेज दैट मीन्स इट इज इरेक्ट। और अगर मैं बात करती हूँ रियल की, देन इट इज इन्वर्टेड। तो अगर इस केस में देखोगे तो इमेज कहाँ पे फॉर्म हुआ है? इन फ्रंट ऑफ द मिरर। ठीक है, इमेज कहाँ फॉर्म हुआ? इन फ्रंट ऑफ द मिरर। तो इमेज फॉर्म्ड इन फ्रंट ऑफ द मिरर इज रियल। अगर इमेज रियल है तो वो कैसा होगा? इन्वर्टेड। पॉइंट साइज है इसलिए नहीं पता चल रहा इरेक्ट की इन्वर्टेड, बट इन अदर केसेस यू वुड बी एबल टू सी, है ना। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? रियल। नेचर ऑफ इमेज क्या है? रियल एंड इन्वर्टेड। रियल एंड इन्वर्टेड। ठीक। नाउ लेट अस टेक द सेकेंड केस। पहले हमने ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे रखा, अब हम प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर लेके आते हैं, बियॉन्ड सी। सी के पीछे प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर ऑब्जेक्ट को रखते हैं। तो पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट इज बियॉन्ड सी। ठीक है, तो let's suppose this is your principal axis, this is concave mirror। ये हमने कोटिंग कर दी ताकि पता चले ये क्या है? कॉन्केव मिरर। ये क्या हो गया? पोल। ठीक है, फिर यहाँ से एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे फोकस लेती हूँ, तो उसी पर्टिकुलर डिस्टेंस पे क्या लूँगी? सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, सेंटर ऑफ कर्वेचर। नाउ आई हैव प्लेस्ड my object beyond C on the principal axis। ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस पे रखा beyond C। ठीक है, वैसे क्या था? इनफाइनाइट पे था, अब beyond C रखा है। तो एक रे फोकस से पास होगी। ठीक है, अब दूसरा रे जो है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से डायरेक्ट पास होगा। कहाँ से पास होगा? सेंटर ऑफ कर्वेचर से। ठीक है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होगा। देखो यहाँ पे क्या होता है कि अगर तुम रे को रिफ्लेक्ट कराते हो और वो फोकस से पास होता है, मान लो अगर एक रे आ रही है, वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होके मिरर पर जा रही है। ठीक है, ये तुम्हारा सेंटर ऑफ कर्वेचर, कहीं से वो ऑब्जेक्ट से रे आ रही है, वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होकर मिरर पर जाती है, रिफ्लेक्ट होती है उसी डायरेक्शन में। वैसे क्या होता है कि कोई भी रे जाती है, मिरर जो है उसका डायरेक्शन चेंज कर देता है, तो ये हमारा इंसिडेंट रे हो जाता है, ये हमारा रिफ्लेक्टेड रे हो जाता है। पर अगर तुम्हारा इंसिडेंट रे जो है, जो मिरर पे जा रहा है, वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होके जा रहा है, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन इट वुड बी रीट्रेसिंग दिस पाथ। जिस पाथ से सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होकर मिरर पे गया, उसी पाथ को रिट्रेस करके वो वापस आएगा। समझ आया? तो यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर में ये गया और ये वापस आया उसी पाथ से। यहाँ पे हमने ये रिफ्लेक्ट कराया, तो देखो कहाँ बन रहा है, कहाँ पे इंटरसेक्शन हो रहा है? यहाँ पे देखो, क्योंकि मेरा इमेज कहाँ बन रहा है? इन फ्रंट ऑफ द मिरर, तो ये रियल होगा। अगर इमेज रियल है तो कैसा होना चाहिए? इन्वर्टेड। इन्वर्टेड मतलब तुम ऑब्जेक्ट को उल्टा बनाओगे। अब इसका हेड नीचे की तरफ, टेल ऊपर की तरफ। अगर मैं ऑब्जेक्ट को ए बी से लिखती हूँ, ठीक है, तो अगर इमेज देखो तो ये उल्टी हो गई, मतलब ए नीचे होगा, बी ऊपर होगा। ये ऑब्जेक्ट है, ये इमेज है। डिफर कराने के लिए मैं ऑब्जेक्ट को ए बी से रिप्रेजेंट करती हूँ, इमेज को ए डैश बी डैश से रिप्रेजेंट करती हूँ। बात समझ आ रही है? सो अगेन इफ वी सी दिस ऑब्जेक्ट विच इज रिप्रेजेंटेड बाय ए बी, मुझे बताना है कि ये इमेज है तो इसको अलग नाम देना है, तो आई रिप्रेजेंट इट बाय ए डैश बी डैश। ठीक है, बी ऊपर है, ए नीचे है, बता रहा है कि इमेज इज इन्वर्टेड। ठीक, तो यहाँ पे तुम अब देखो ये ऑब्जेक्ट इतना है और इमेज छोटी हो गई, तो तुम लोग क्या लिखोगे? बियॉन्ड सी। पोजीशन ऑफ इमेज कहाँ है? बिटवीन एफ एंड सी। पोजीशन ऑफ इमेज कहाँ है? बिटवीन एफ एंड सी। बिटवीन एफ एंड सी।
अब हमें इमेज मिल गया। इमेज का साइज कैसा है? कंपैरेटिवली टू ऑब्जेक्ट से तो छोटा है, मैं लिखूंगी डिमिनिश्ड। मैंने बोला ना डिमिनिश्ड का मतलब छोटा, तो वो डिमिनिश्ड, ठीक है। फिर कैसा है नेचर ऑफ इमेज? रियल, क्योंकि इन फ्रंट ऑफ द मिरर है। और कैसा है? इन्वर्टेड, तो क्या लिखोगे? रियल एंड इन्वर्टेड। क्या लिखोगे? रियल एंड इन्वर्टेड, ठीक है। नाउ लेट अस टेक द थर्ड। पहले केस में मैंने ऑब्जेक्ट को इनफाइनाइट पे रखा था, दूसरे केस में मैंने प्रिंसिपल एक्सिस पे चलाया सी के पीछे। अब मैं क्या करूंगी? सी पे, यानी द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट इज एट सी। पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट इज एट सी। सो अगेन ये तुम्हारा हो गया प्रिंसिपल एक्सिस, ये तुम्हारा हो गया कॉनकेव मिरर, ठीक है, कोटिंग कर देंगे। ये तुम्हारा क्या हो गया? पोल, ठीक है। यहाँ से एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे फोकस, फोकस से वही डिस्टेंस पे सेंटर ऑफ कर्वेचर। मैंने ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा है? एट सी। सो लेट अस टेक ऑब्जेक्ट एट सी, ठीक है। तो अब ये सी पे है, तो एक रे तो मैं एज यूजुअल फोकस से पास करा दूंगी, ठीक है। थोड़ा सा समझ लेना क्योंकि स्केल के बिना कर रहे हैं, ऐसा तुम लोग मत करना, वो मैं बताऊंगी कैसे ड्रॉ करना है, अभी सिर्फ समझो, है ना। सो एक रे तो हमने फोकस से पास किया, ये रिफ्लेक्ट होके इस तरह से गया। अब दूसरा रे हम सेंटर ऑफ कर्वेचर से तो पास नहीं कर सकते, तो हम क्या करेंगे? डायरेक्टली फोकस से पास कराएंगे। फोकस से पास कराएंगे और ये सीधा ले लेंगे, ठीक है। सीधा ले लेंगे तो जहाँ पे वो इंटरसेक्ट कर रहा है यहाँ पे बनेगा। अब देखो यूजुअली ये क्या कहते हैं कि अगर पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट सी पे तो तुम्हारा पोजीशन ऑफ इमेज भी एट सी होना चाहिए। मेरा यहाँ पे क्यों नहीं बन रहा? क्योंकि मैंने एग्जैक्टली स्केल पेंसिल से नहीं किया। दूसरा, तुम टेक्स्ट बुक में भी देखना, वो थोड़ा सा सी के इस तरफ होता है, इस तरफ, है ना, थोड़ा सा सी के अंदर होता है, यानी बिटवीन एफ एंड सी आता है, थोड़ा शिफ्ट आता है। एग्जैक्टली स्केल पेंसिल से अच्छे से, ठीक है, बिना कोई दगाबाज दिए अच्छे से कैलकुलेट करके मेजरमेंट लेकर करोगे, so you can get the image at C. So you have to write the image we get is at C. देखो ये ऑलमोस्ट सेम साइज है, तो वो सेम साइज का ही होता है, जितना साइज ऑब्जेक्ट का उतना साइज इमेज का, ठीक है। सो सेम साइज, सेम साइज। अच्छा, कहाँ पे इमेज बन रहा है? ये मेरा ए बी, ए डैश बी डैश, है ना। इमेज कहाँ बन रहा है? इन फ्रंट ऑफ द मिरर, ठीक है। तो मेरा इमेज कैसा होगा? रियल, क्योंकि मैं रियल लिख रही हूँ, मतलब ये कैसा होगा? इन्वर्टेड। कैसा होगा? इन्वर्टेड। बात समझ आए? दिस वाज द थर्ड केस। नाउ लेट अस मूव डाउन टू फोर्थ केस। फोर्थ केस में क्या होता है? हम आगे बढ़ रहे हैं, देखो पहले इन्फिनिटी पे था, फिर बियॉन्ड सी था, एट सी, अब बिटवीन एफ एंड सी। लेट अस टेक दैट केस, है ना। सो अगेन प्रिंसिपल एक्सिस, कॉनकेव मिरर, कोटिंग, पोल, ठीक है, ये तुम्हारा फोकस, ये तुम्हारा सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक। अब हमें क्या करना है? ऑब्जेक्ट को लेना है बिटवीन एफ एंड सी। पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट क्या है? बिटवीन एफ एंड सी, बिटवीन एफ एंड सी। लेट अस टेक द ऑब्जेक्ट हियर, बिटवीन एफ एंड सी। तो देखो अब एक तो फिर से वही यहाँ से निकली और फोकस से पास हुई, दूसरी जो है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होगी क्या? तुम देखो, वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करा सकते हो? नहीं। सो वी वुड बी डायरेक्टली पासिंग इट थ्रू फोकस, फोकस, और फिर यहाँ से इधर से रिफ्लेक्ट होगा, यानी एक हमने यहाँ से निकाली और फोकस से पास कराई, एक डायरेक्ट फोकस से पास करा के फिर रिफ्लेक्ट करे, ठीक है।
तो यहाँ पे ये तुम्हारा इमेज बना इंटरसेक्शन पे। देखो ये तुम्हारा सी के पीछे बन रहा है ना, बियॉन्ड सी। ठीक है, थोड़ा और पीछे दिखता अगर मैंने अच्छे से बनाया होता, है ना, स्केल के साथ। तो ये तुम्हारा क्या है, ऑब्जेक्ट, ये तुम्हारा क्या है, इमेज, बी डैश ए डैश। देखो ये कंपैरेटिवली ऑब्जेक्ट से इमेज बड़ी दिखती है कि नहीं, है ना। तो यहाँ पे हमारा इमेज का पोजीशन क्या है, बियॉन्ड सी। तुम देखो जब तुमने बियॉन्ड सी ऑब्जेक्ट लिया था, इमेज का बना था बिटवीन एफ एंड सी। अब क्या हुआ कि तुम्हारा ऑब्जेक्ट बिटवीन एफ एंड सी है, तो इमेज का बना बियॉन्ड सी, उसका उल्टा हो गया। समझ आया। यहाँ पे ऑब्जेक्ट जो है वो छोटा है, इमेज कैसा है, एनलार्ज्ड, बड़ा हो गया ना, तो उसे हम क्या लिखेंगे, एनलार्ज्ड। इमेज इज एनलार्ज्ड। अच्छा, सेम साइड ऑफ मिरर, इन फ्रंट ऑफ द मिरर, रियल। ओके, रियल है तो साथ ही साथ क्या होगा, इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड। बात समझ आ रही है। लेट अस टेक अनदर केस। फिफ्थ केस जो आता है वो होता है एट एफ। क्यों, तो हमने इन्फिनिटी से स्टार्ट किया था, बियॉन्ड सी रखा, एट सी, बिटवीन एफ एंड सी, अब एट एफ। समझ आया। तो अब हम क्या करते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस, कॉन्केव मिरर, कोटिंग, पोल, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर। मैंने ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा, एट एफ। ठीक है, मैंने ऑब्जेक्ट को रखा एट एफ। ठीक, अब क्या कर रही हूँ, यहाँ से देखो, एक तो ये रिफ्लेक्ट कराओ और फोकस से पास करो। ठीक है, और फोकस से पास करो। और दूसरा जो है, वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करो ऑब्जेक्ट से। तुम देखोगे ये दो लाइन पैरेलल आएगी। पैरेलल मतलब द इमेज वुड बी फॉर्म्ड एट इंफिनिटी। तो तुमने जब ऑब्जेक्ट को एट एफ रखा, इमेज कहाँ पे बना, इमेज बना एट इंफिनिटी। फिर से देखो, जब तुम लोगों ने ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी लिया था तो इमेज कहाँ बना था, एट एफ। अब मैं क्या कर रही हूँ, ऑब्जेक्ट को एफ पे ले रही हूँ, तो इमेज कहाँ बन रहा है, एट इंफिनिटी। उल्टा हो गया इसका। ठीक है, अब यहाँ पे ये बनेगा, इमेज जो बनेगा वो होगा हाईली एनलार्ज। वो क्या होगा, हाईली एनलार्ज। इसलिए तुमको याद हो, इन्फिनिटी के टाइम पे मैंने ऑब्जेक्ट इतना बड़ा इस तरह से बनाया था, मतलब प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर रखा नहीं था, वो दोनों साइड था, इसलिए एक रे यहाँ से लिया था, एक रे यहाँ से लिया था, है ना। तो हाईली एनलार्ज होता है, कैसा होगा, इमेज रियल एंड इन्वर्टेड। क्यों, क्योंकि देखो ये इस तरफ ही बन रहा है, मिरर के फ्रंट ही बन रहा है, तो क्या लिखोगे, रियल एंड इन्वर्टेड। ठीक है, पहला केस हमने एट इंफिनिटी, फिर ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा, बियॉन्ड सी, फिर कहाँ रखा, एट सी, फिर कहाँ रखा, बिटवीन एफ एंड सी, एट एफ। अब कहाँ रखेंगे, बिटवीन पी एंड एफ। ठीक है, तो लास्ट केस देखते हैं। 6 between P and F, between P and F। ठीक है, वंस अगेन ये तुम्हारा क्या हो गया, प्रिंसिपल एक्सिस, ये तुम्हारा कॉन्केव मिरर, ये तुम्हारा कोटिंग हो गया, यहाँ पे हमने पोल बना दिया, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक, अब ध्यान दो, हमने ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा है, बिटवीन P एंड F। तो लेट अस प्लेस द ऑब्जेक्ट बिटवीन P एंड F। अब एक रे तुम इस तरह से डालो, ठीक है, और यहां से फोकस से रिफ्लेक्ट करो। ठीक है, दूसरा सेंटर ऑफ कर्वेचर से ये इस तरह से जाएगा और यहाँ पे
ठीक है, तो ये सेंटर ऑफ कर्वेचर तो पाथ को रिट्रेस करेगा। अब यहाँ पे क्या मिल सकता है, ये आगे और बड़ा होता जाएगा, तो हम इसको पीछे एक्सटेंड करेंगे। जब हम इसको पीछे एक्सटेंड करते हैं तो एक पॉइंट आता है जहाँ पे ये 2 पॉइंट मिलती है, ठीक है। तो ये जो 2 रेस एक पॉइंट पे मिली, अब ये कहाँ आ गया, इमेज बिहाइंड द मिरर। ये ऑब्जेक्ट है, ये तुम्हारा इमेज है, क्या लिखोगे, एनलार्ज्ड है, पर इमेज बन कहाँ रहा है, बिहाइंड द मिरर। इमेज फॉर्म बिहाइंड द मिरर कैसा होता है, वर्चुअल। कैसा होता है, वर्चुअल। और अगर वर्चुअल लिख रहे तो इरेक्ट होगा, मतलब अगर ये ए बी है तो यहाँ पे लिखोगे ए डैश बी डैश, इमेज को सीधा रखना है। बात समझ आ रही है? तो यहाँ पे तुम लिखोगे वर्चुअल एंड इरेक्ट। ओके, अब पोजीशन ऑफ इमेज क्या है, बिहाइंड द मिरर, बिहाइंड द मिरर। तो ये कैसे ड्रॉ करना है, रेस कहाँ कहाँ से पास करनी है वो बताया, पेंसिल से अच्छे से ड्रॉ करके किस तरह से करना है वो बाद में, नेक्स्ट वीडियो में। तुमको इस वीडियो लेक्चर से सिर्फ ये याद रखना है कि अगर मैं बोलती हूँ ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी तो इमेज कहाँ बनेगा, एट फोकस। साइज क्या होगा, हाईली डिमिनिश्ड पॉइंट साइज। नेचर ऑफ इमेज क्या होगा, रियल एंड इन्वर्टेड। अगर मैं ऑब्जेक्ट को बियॉन्ड सी रखती हूँ ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस तो इमेज फॉर्म होगा बिटवीन एफ एंड सी। कैसा होगा, डिमिनिश्ड। नेचर कैसा होगा, रियल एंड इन्वर्टेड। अगर मैं ऑब्जेक्ट को एट सी रखती हूँ तो क्या होगा, इमेज भी सी पे बनेगा। कैसा होगा, सेम साइज, जितना साइज ऑब्जेक्ट का है उतना ही साइज इमेज का, पर इन्वर्टेड एंड रियल। फिर अगर मैं ऑब्जेक्ट को बिटवीन एफ एंड सी रखती हूँ तो इमेज बन जाएगा बियॉन्ड सी। मैंने तुमको बोला कि ये एट इन्फिनिटी तो एट एफ, बियॉन्ड सी तो बिटवीन एफ एंड सी, एट सी तो एट सी, पर इसके बाद हमने बिटवीन एफ एंड सी तो बियॉन्ड सी, इसके बाद हमने लिया एट एफ तो एट इन्फिनिटी। तो ये तुमको याद रखना है। सी के बाद से सारे इमेज कैसे होंगे, एनलार्ज, हाईली एनलार्ज। इन्फिनिटी पे जो भी इमेज बनता है वो हाईली एनलार्ज। फोकस पे जो इमेज बनता है वो पॉइंट साइज, ठीक। फिर हमने एक लास्ट केस देखा था, इसमें बिटवीन पी एंड एफ इमेज बनता है बिहाइंड द मिरर। क्योंकि वो बिहाइंड द मिरर बन रहा है तो नेचर कैसा होगा, वर्चुअल। क्योंकि वो वर्चुअल है मतलब इमेज इरेक्ट होगी। बात समझ आ रही है? तो ये सब था कॉन्केव मिरर के बारे में। अभी सिर्फ 2 और देखो, 2 केसेस सिर्फ आते हैं कॉन्वेक्स मिरर के केस में, है ना। तो कॉन्वेक्स मिरर के केस में सिर्फ 2 पोजीशन की बात करेंगे। देखो, ये तुम्हारा प्रिंसिपल एक्सिस, ये क्या हो गया, यहाँ पे मैंने कोटिंग कर दिया, ठीक है। ये मेरा रिफ्लेक्टिंग सरफेस सी, ये तुम्हारा हो गया पोल। अब फोकस इस साइड बनाओगे कि इस साइड, कैसे डिसाइड करोगे, तो इसको स्फीयर को कंप्लीट करने की कोशिश करो। जब कंप्लीट करोगे तो पता चलेगा सेंटर ऑफ कर्वेचर यहाँ है, मतलब फोकस भी इस साइड होगा, ठीक है। तो तुम्हारा ये फोकस हो गया, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया, ठीक। अब यहाँ पे तुम्हारा ये क्या है, कॉन्वेक्स मिरर। इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस कहाँ है, इस साइड की इस साइड, ऑब्वियसली इस साइड, है ना। अब क्योंकि रिफ्लेक्टिंग सरफेस इस साइड है तो ऑब्जेक्ट इधर रखना। कल को पता चला मैडम फोकस सेंटर ऑफ कर्वेचर इधर आ गया तो हम ऑब्जेक्ट भी इधर रखेंगे, कोटिंग पे रिफ्लेक्शन कराओगे, नहीं। हमें ऑब्जेक्ट को कहाँ रखना है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस के सामने। तो अगर मैं देखूं पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, ठीक है, तो पहला केस क्या होता है, पहला केस है पोल, या नहीं चलो पहला हम ले लेते हैं एट इंफिनिटी, पहला हम ले लेते हैं एट इंफिनिटी, ठीक है, जैसे उसमें था। तो उस केस में कॉन्केव मिरर में
जब हम ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे रख रहे थे तो इमेज कहाँ बन रहा था, एट फोकस। तो यहाँ पे अगर हम प्रिंसिपल एक्सिस पे नहीं रखते हैं, हम ऑब्जेक्ट ले रहे हैं, तो क्या करेंगे, यहाँ से ये लाइट जा रही है और यहाँ से ये लाइट जा रही है, ठीक है। अब कॉन्वेक्स मिरर जो है वो रेस को डाइवर्ज करता है, वो रेस को डाइवर्ज करते हैं। वहाँ पे क्या हो रहा था, अगर तुमको याद हो, ये कॉन्केव मिरर था, यहाँ पे तुमने इन्फिनिटी पे रखा था, ये तुम्हारा सेंटर ऑफ कर्वेचर, फोकस, पोल ऐसा था, है ना। तो हमने क्या किया था, एक यहाँ से लिया था, एक यहाँ से लिया था और इसको कॉन्वर्ज कराया था। क्या कराया था, कॉन्वर्ज, एक जगह पे मीट कर रहे हैं, है कि नहीं। पर यहाँ पे क्या होगा, डाइवर्ज। अभी जो तुम डाइवर्ज बनाओगे ना, ये इस तरह से बनाया, फोकस से ऐसे पास हो, ऐसा डाइवर्ज होगा। फोकस से पास करते हुए फोकस से पास करना है, इसको तुम डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट करोगे क्योंकि ये बिहाइंड द मिरर है, ठीक है। और ये रिफ्लेक्ट होके गया, बात समझ आई। तो यहाँ पे तुम्हारे ये दो रेस कहाँ मीट कर रही है, फोकस पे, है कि नहीं। तो ये फोकस पे मीट कर रही है, मतलब यहाँ क्या लिखोगे, एट एफ। पर ये फोकस पे बन रहा है, लेकिन कहाँ बन रहा है, बिहाइंड द मिरर। तो एट एफ बिहाइंड द मिरर। अब क्योंकि बिहाइंड द मिरर है, इमेज कैसा होगा, वर्चुअल। इमेज फॉर्म बिहाइंड द मिरर कैसा है, वर्चुअल। तो यहाँ क्या लिखोगे, वर्चुअल। अच्छा, वर्चुअल के साथ साथ क्योंकि वर्चुअल है तो वो क्या लिखोगे, एंड इरेक्ट। पर साइज कैसा है, पॉइंट साइज, हाईली डिमिनिश्ड, है ना, हाईली डिमिनिश्ड। और क्या लिखोगे, पॉइंट साइज, है कि नहीं। तो देखो पहले जैसा ही है, इन्फिनिटी है, एफ पे बन रहा है, पर एफ पे बिहाइंड द मिरर, यहाँ पे इन फ्रंट ऑफ द मिरर बन रहा था, वहां पे बिहाइंड द मिरर। पॉइंट साइज है इमेज, इमेज पॉइंट साइज है, हाईली डिमिनिश्ड है, बहुत छोटी है। नेचर ऑफ इमेज इस केस में, कॉन्वेक्स मिरर में बिहाइंड द मिरर है इसलिए वर्चुअल एंड इरेक्ट। कॉन्केव मिरर के केस में इमेज जो है इन फ्रंट ऑफ द मिरर बन रहा था, इसलिए हम वहां नेचर क्या लिख रहे थे, रियल एंड इन्वर्टेड। बात समझ आ रही है। चलो नेक्स्ट केस एक ले लेते हैं, लास्ट केस कॉन्वेक्स मिरर का, कि लेट्स सपोज दिस इज योर प्रिंसिपल एक्सिस, दिस इज कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है। ये तुम्हारा पोल, यहाँ पे आ जाएगा फोकस, यहाँ आ जाएगा सेंटर ऑफ कर्वेचर। हम लेते हैं पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट बिटवीन पोल ऑफ द मिरर एंड इंफिनिटी, ठीक है। पहले एट इंफिनिटी था, अब इंफिनिटी से लेके पोल तक कहीं पे भी रख दो, तो हमने कहीं पे भी रख दिया, लेट सपोज दिस, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। अब यहां से देखो, ये एक रे जा रही है और ये इसके अकॉर्डिंग डाइवर्ज होगी, मतलब हमें फोकस से पास कराना है। तो ये इधर से आई और ये इधर से डाइवर्ज हुई, ठीक है। इसको थोड़ा सा एक्सटेंड करते हैं। एक और रे हमें क्या करना है, डायरेक्टली सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास कराना है, ठीक है। एक और रे ले रहे हैं, उसको सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास कराते हैं। कहाँ पे इंटरसेक्ट हुआ, यहाँ पे, क्योंकि बिहाइंड द मिरर है, ठीक है। ये तुम्हारा ए बी और ये हो जाएगा ए डैश बी डैश, ठीक है। रेस दिखाना भूलना नहीं है, ठीक है। अब रेस मतलब रेस पे जो डायरेक्शन है वो दिखाना भूलना नहीं है। मैं सिर्फ ये कह रही थी कि ये जो इमेज है, ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट का इमेज कहाँ बन रहा है, बिहाइंड द मिरर। तो इसका नेचर कैसा होगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट,
अच्छा तुम देखो साइज कंपेयर करो तो क्या है, ऑब्जेक्ट इमेज, ऑब्जेक्ट इमेज मतलब डिमिनिश्ड होगा, है ना। और ये कहाँ बन रहा है, ये कहाँ बन रहा है, बिहाइंड द मिरर, बिहाइंड द मिरर। बात समझ आ रही है। तो ये दो केसेस हुए। तुम नोटिस करो कॉन्वेक्स मिरर के केस में ऑब्जेक्ट का जो इमेज बनता है वो हर बार कैसा बन रहा है, वर्चुअल एंड इरेक्ट, वर्चुअल एंड इरेक्ट। इन केस ऑफ कॉन्केव मिरर 5 केसेस ऐसे थे जिसमें रियल एंड इन्वर्टेड था, एक केस ऐसा था जिसमें वर्चुअल एंड इरेक्ट था। वो कब था, जब F और P के बीच में तुमने इमेज ऑब्जेक्ट को रखा। जब F और P के बीच में जब ऑब्जेक्ट को रखा था तब जो तुम्हारा इमेज था वो बिहाइंड द मिरर एनलार्ज बना था, है ना। तो हम ऐसा कह सकते हैं कॉन्केव मिरर के केस में तुम इंफिनिटी पे रखो, बियॉन्ड सी रखो, एट सी रखो, बिटवीन एफ एंड सी रखो, एट एफ रखो, ये 5 जो है इसमें तुमको रियल एंड इन्वर्टेड मिलेगा। पर जब तुम F और P के बीच में रखते हो तब तुम्हें कैसा मिलेगा, इमेज जो मिलेगा वो एनलार्ज मिलेगा। और कैसा मिलेगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट। मैं ऐसा कह सकती हूँ कि व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड वेरी क्लोज टू द मिरर वी गेट वर्चुअल एंड इरेक्ट, otherwise the image formed by the object is real and inverted, is real and inverted। बात समझ आ रही है। अब हम यूसेस देख लेते हैं एक बार। तो अगर तुम यूसेस ऑफ कॉन्केव मिरर देखो, यूसेस ऑफ कॉन्केव मिरर, तो कॉन्केव मिरर के देखो, कॉन्केव मिरर के ये वाले ऐसे केसेस कितने थे, 6। तो इसके यूसेस कितने हैं, 4। पर अगर मैं बात करूं यूसेस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर तो उसका एक ही है। ऐसे तो बहुत है लेकिन टेक्स्ट बुक में कितना है, एक। यूसेस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर, ये मैं ऐसा लिख सकती हूँ, यूज ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। तो कंफ्यूज मत होना, एक जो बताऊं वही याद रखना। देखो इसके केसेस भी 2 है, इसका यूज भी 1 है। इसमें केसेस 6 है, 6 केसेस है, तो इसके यूसेस कितने हैं, 4। ठीक है, तो अभी तो सब इजी लग रहा है, फिर जब लेंस आएगा तो सब खिचड़ी होगा। तो बेटर अभी से अच्छे से याद करो, सबकॉन्शियस माइंड में ये जाने देना, है ना, जाने देना। तो क्या होगा कि जैसे नींद में से उठा के भी पूछे ना तो याद हो, इतना पक्के से करना है। तो अब देखो यहाँ पे यूज ऑफ कॉन्केव मिरर, तो इट इज यूज्ड इन शेविंग मिरर। शेविंग मिरर्स में इसको यूज करते हैं टू हैव enlarged view of face, है ना। फिर used by dentists, डेंटिस्ट यूज करते हैं to have large image of teeth। ठीक है, अब तुमको मैंने एक ऐसा केस बताया था जहाँ पे हमने ये कॉन्केव मिरर बनाया, इन्फिनिटी पे जब ऑब्जेक्ट को रखा तब उसका रिफ्लेक्ट होके कहाँ जा रहा था, फोकस पे, है ना, इसका फोकस पे जा रहा था। मतलब क्या कि अगर एक ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पे, तो लेट्स सपोज सन हमसे बहुत दूर है, तो सन की रेस को जब हम कंसंट्रेट करेंगे वो एक कॉन्वर्ज, एक टाइम आएगा वहां पे वो कॉन्वर्ज कर रही होगी, एक पोजीशन, एक पॉइंट पे वो सन रेस कॉन्वर्ज कर रही होगी, क्योंकि सन कहाँ है, इनफाइनाइट पे। तो अगर मैं कॉन्केव मिरर यूज करती हूँ तो इट इज यूज टू कंसंट्रेट, यूज टू कंसंट्रेट sunlight to produce heat in solar furnaces। ठीक है, एक और पॉइंट मैं भूल गई, एक बार देखने दो। हाँ, इट इज यूज्ड इन टॉर्चेस, searchlights,
एंड हेडलाइट्स। ठीक है, टॉर्चेस, सर्च लाइट्स और हेडलाइट्स में हम ये यूज करते हैं। टॉर्चेस पता है, हेडलाइट्स ऑफ व्हीकल्स हमें पता है। सर्च लाइट्स क्या होता है, वो जो बड़ी टॉर्चेस होती है ना, या तुम लोगों ने वो डिस्को में देखा होगा, नीचे से पड़ी होती है, ऐसे ऐसे घूमती रहती है ना, वो इतना बड़ा वाइडर व्यू देती है। वो स्पॉटलाइट नहीं है, स्पॉटलाइट अलग है, ये पावरफुल बीम देती है। सो दीज आर गिविंग parallel powerful beam of light, giving parallel powerful beam of light। बात समझ आ रही है? तो ये क्या हो गया तुम्हारा कॉन्केव मिरर का यूसेस। जब मैं कॉन्वेक्स मिरर का बात करूं, मैंने कहा एक ही यूज है, वो क्या है कि यूज्ड इन rear view mirror ऑफ व्हीकल्स। रेयर व्यू मिरर को विंग मिरर भी लिखा है उन्होंने टेक्स्ट बुक में, ठीक है। रेयर व्यू मिरर लिख सकते हो फिटेड एट द साइड ऑफ व्हीकल्स। अब देखो, अगर हमें, ठीक है, एट द साइड ऑफ द व्हीकल्स, हमें पीछे का देखना है ना, पीछे का देखना है व्हीकल में बैठ के, तो हम प्लेन मिरर भी लगा सकते हैं। ये कॉन्वेक्स मिरर ही क्यों लगाना है? सो वाई, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, वाई कॉन्वेक्स मिरर इज यूज्ड एज रेयर व्यू मिरर, है ना। तो वो इसलिए बिकॉज पहला कॉन्केव की, पहले हम कॉन्केव के साथ कंपेयर करते हैं। जब मैं कॉन्केव के साथ कंपेयर करूँ, कॉन्केव कैसा इमेज बनाता है, रियल एंड इन्वर्टेड बनाता है। तो अगर मैं कल को कॉन्केव मिरर लगा के घूमी तो क्या होगा, चलो जो एकदम पास में होगा उसका तो वर्चुअल एंड इरेक्ट दिखेगा, लेकिन जो सब व्हीकल्स दूर होंगे सब उल्टे दिख रहे। बोलो, तो तुम पीछे देख रहे हो सब उल्टे दिख रहे, ऐसा चलेगा? नहीं चलेगा, है ना। तो अगर मैं कॉन्केव मिरर व्हीकल के साइड पे लगाती हूँ और मैं देख रही हूँ वहाँ सब ऐसे उल्टे दिख रहे भूत जैसे, है ना, तो ऐसा तो नहीं चलेगा। तो वी वुड बी टेकिंग कॉन्वेक्स मिरर। तो बिकॉज इट ऑलवेज फॉर्म्स कैसा, वर्चुअल इमेज, दो डिमिनिश्ड। हालांकि छोटा बनाता है, इमेज छोटा होता है, लेकिन कैसा होता है, वर्चुअल। और लिख सकते हो, सॉरी, वर्चुअल के साथ साथ क्या लिखोगे, इरेक्ट, ये भी लिख दो। सो ऑलवेज फॉर्म वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज, ठीक है। दो डिमिनिश्ड, देखो दोनों केस में, एक तो ये केस होता है और एक ये केस होता है डिमिनिश्ड। किसी में भी वो एनलार्ज व्यू या सेम साइज का नहीं बना रहा है। जब मैं, ये तो एक केस था जब मैं कॉन्केव मिरर के साथ कंपेयर कर, प्लेन मिरर क्यों नहीं, प्लेन मिरर भी हर बार वर्चुअल और इरेक्ट इमेज बनाएगा, पर उसका फील्ड ऑफ व्यू लार्जर नहीं है। दिस कॉन्वेक्स मिरर इज हैविंग लार्जर फील्ड ऑफ व्यू। लार्जर फील्ड ऑफ व्यू मतलब क्या, कि देखो हमको दो आंखें हैं, तो अगर मैं देखूं, मुझे तेरी नज़र से थोड़ा बहुत दिख रहा है, मेरा इस साइड क्या है और इस साइड क्या है। मान लो अब मैं बोलती हूँ ये एक आंख बंद कर दो, ठीक है, एक आंख बंद कर दो और सिर्फ इससे देखो, कितना दिखेगा, इस तरफ का पूरा दिखेगा, ठीक है, भले ही तेरी नज़र से दिखेगा, लेकिन इस तरफ का कंपैरेटिवली कम दिखने लगा। क्यों? क्योंकि एक आंख बंद कर दी। इस साइड का बंद करोगे तो इधर का अच्छे से दिखेगा, इधर कम दिखेगा। मतलब क्या किया मैंने, मेरा फील्ड ऑफ व्यू को छोटा कर दिया। दोनों आंखें खोलती तो अच्छे से सारा दिखता है। तुमने अगर डियर, काव, ये एनिमल्स देखे होंगे तो उनमें उनकी आंखें पास में होती है। क्यों? उनका फील्ड ऑफ व्यू बढ़ जाता है ना, तो वो जो भी प्रे अटैक करने वाला होगा ना, उनको तुरंत पता चलेगा। लेकिन लायन, टाइगर, जो कि कैसे होते हैं, जो कि प्रीडेटर्स होते हैं। प्रीडेटर्स मतलब जो हंट करते हैं, जो प्रे के पास जाते हैं, उनकी आंखें देखो सामने होती है। वो दोनों आंखें सामने, हमारी दोनों आंखें सामने। क्यों? क्योंकि वी कैन गेट द शार्प इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट प्लेस्ड इन फ्रंट। तो अगर आंखें सामने होगी तो शार्प इमेज मिलेगा, पास में होगी तो तुम्हारा फील्ड ऑफ व्यू बढ़ जाएगा। मॉन्स्टर के केस में एक ही आंख होती है तो उसको इतना सारा नहीं दिखेगा जितना अभी हमको दिख रहा है। बात समझ आए?
तो फील्ड ऑफ व्यू को बढ़ाने के लिए वी यूज कॉन्वेक्स मिरर इंस्टेड ऑफ प्लेन मिरर. To get image always virtual and erect, we use convex mirror instead of concave mirror. बात समझ आए? ये यूसेस को दिमाग में रखना, टेबल याद करो, 2-3 बार लिखो, ठीक है. अगली क्लास में हम सीखेंगे कि ये रे डायग्राम्स हम ड्रॉ कैसे करेंगे.